Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to take a look at the XAT exams verbal pattern. It's VRC section with respect to XAT 2024 exam. Now, if you are watching this video after this exam has already happened, this video may or may not be relevant to you. I'm making this primarily with respect to keeping in focus the aspirants who are moving on from CAT 2023 and then going to appear for the XAT exam 2024. ठीक है तो चलो without any delay let's dive in and see what this exam and its specifically its verbal pattern is all about. ठीक है तो before going ahead, please remember I'm not going to bore you all with all the cliche regular details like exam इतने देर की होती है, फिर 5 मिनट ब्रेक होता है, फिर ऐसे को इतना टाइम एंड ऑल दैट. You will find that knowledge, you will find that ज्ञान literally anywhere. You simply Google that exam pattern and you will get tons of websites who will give you all this ज्ञान. We are not going to waste a precious few moments here on those trivial details. My job here is to dive in a little bit and lay out the VRC का section का pattern with respect to the XAT exam specifically before you. Okay, तो चलो then let's see what it is. तो मैं कभी भी कोई भी एग्जाम का कोई भी सेक्शन अगर आप लो तो उसके बारे में एक फेयर इनफ अगर गेस वर्क करके पैटर्न ट्रेंड एस्टैब्लिश करना है तो व्हाट आई प्रेफर टू डू इज टेक अ लुक एट द पास्ट 3 इयर्स के पेपर्स. नाउ विद रिस्पेक्ट टू दैट एग्जाम ऑफ कोर्स यू विल हैव बहुत बहुत सारे सालों के पेपर्स, ऑफिशियल पेपर्स आर आउट देयर इन पब्लिक डोमेन. इनकी खुद की वेबसाइट के ऊपर इफ आई एम नॉट रॉन्ग फ्रॉम कैट 2017 और 18 ऑनवर्ड्स उनके ऑफिशियल एग्जाम पेपर्स अवेलेबल है. But I prefer to take a look at only the latest 3 years and not उसके पहले का, क्योंकि because these exams are autonomous, the bodies which conduct them, they have complete freedom to change the pattern as per their will. तो बहुत पुराने पैटर्न देखकर भी मतलब नहीं बनता. And with respect to that, there is also no such thing as कि जो कैट में आपको देखने मिलता है where IIMs rotate the responsibility of conducting CAT. तो इस साल कैट 23 जैसा IIM लखनऊ ने कंडक्ट किया तो पीपल वर सेइंग कि नहीं हम कैट 2017 का एनालिसिस करेंगे, कैट 2011 का एनालिसिस करेंगे टू सी कि व्हाट IIM लखनऊ ट्राइज टू डू. यहाँ पर देयर इज ओनली वन बॉडी, वन इंस्टीट्यूट व्हिच कंडक्ट्स इट, एक्सएलआर है. तो देयर इज नो नो स्कोप फॉर गोइंग अराउंड एंड बीटिंग अराउंड द बुश. ये साल का पेपर देखो, वो देखो, ऐसा देखो, वैसा देखो. ठीक है. सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, पास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स का हम अगर एक पैटर्न देखें तो दे हैव अराइव्ड एट एक प्रॉपर सा पैटर्न बैठ चुका है, बहुत कंसिस्टेंट. एज यू कैन सी कैट 22 और 23 में तो लिटरली एवरी सिंगल क्वेश्चन कैटेगरी को कितना वेटेज दिया है वो भी उन्होंने एग्जैक्ट सेम रखा है. मार्जिनल वेरी 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 स्लाइट डिफरेंस इन 2021 बट 99% फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट्स द सेम. द ओनली माइनर डिफरेंस दैट यू कैन सी इज कि आरसी के अंदर में एक क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है आपको एंड दैट इज कॉम्पेंसेटेड कि पैरा कंप्लीशन में एक ही क्वेश्चन पूछा था. रेस्ट ऑल ऑफ इट एज यू कैन सी सब कुछ वैसा का वैसा है. ठीक है. So let's discuss what these question categories are and what philosophy XAT exam may come in handy for you. Okay. So देखो, when you take a look at the question categories, it seems like the paper setters for that they are like सबके लिए सब कुछ है. Okay, literally everything for anybody apart from vocab based direct question जो आपको स्टैप पे पूछे जाते हैं, synonym antonyms पूछ लेंगे डायरेक्टली, बस वो नहीं है यहाँ पर XAT एग्जाम में. Rest practically almost every question category that can be asked with respect to the verbal section वो सब कुछ पूछा है इन्होंने. as the name goes, verbal section है, VRC section है, RC के बिना तो बात बनेगी नहीं. तो when it comes to XAT exam, RC के 12 क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिपार्चर है. You might be accustomed to CAT का ecosystem जहाँ पे every passage now carries 4 questions. Here there is a departure. Here we have only 3 questions per RC. So naturally you are going to have 4 RCs now. ठीक है. कैट 20 सॉरी कैट नहीं XAT 2021 में थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट था यहाँ पर. ओके, 4 आरसीज तो थे ही थे प्लस और 2 मिनी आरसीज थे एंड ऑल दैट, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट जोन राइट नाउ. 22 और 23 का पैटर्न हम एक बार ध्यान से देखेंगे. लेट मी जॉट इट डाउन थोड़ा सा बेटर राइटिंग में. ओके, so what this RC questions are stacked up is in this format. You have 3 questions per RC and you have 4 such RCs present. ठीक है, तो 4 3s are but naturally 12. And one of my favorite most loved category of BRC क्वेश्चन कैटेगरी जो मुझे बहुत पसंद है, मेरी बहुत इच्छा थी कि इस साल के कैट में आए, कैट 23 में. 24 ऑनवर्ड्स आएगा या नहीं ऑफ कोर्स नो आइडिया, बट क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस. ठीक है, ये कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, आई विल शो यू इन अ फ्यू मिनट्स.
बट इसके 5 क्वेश्चन आते हैं आपको, और ये करीब करीब फॉर्मेट इनका स्टैंडर्ड सेट दिख रहा है। एंड देन वेरी सरप्राइजिंगली यू हैव ग्रामर क्वेश्चन ऑल्सो कमिंग इन। कैट में ग्रामर एंड वोकेबलरी आर कंप्लीटली एब्सेंट, बट व्हेन इट कम टू ज़ैट XAT वी हैव ग्रामर कमिंग इन, बट वेरी रीजनेबल क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है अंधाधुंध बस ग्रामर ही ग्रामर पूछ रखा है, विच हैपेंस लेट अस से इन स्नैप या फिर इवन इन महाराष्ट्र MBCET। ओके, यहाँ वैसी बात नहीं है, बहुत पार्डन, नॉमिनल ठीक सा प्रेजेंस है, 3 वेरी रीजनेबल क्वेश्चंस एंड दैट्स इट। फिर अनादर एरिया जहाँ पे काफी बवाल होता था, अभी भी कुछ सर्कल्स में होता है, फिर सैट में पोयम पूछते हैं, पोयम पूछते हैं, पोयम दी होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन होता है। तो इन माय ओपिनियन इट्स मच अडू अबाउट नथिंग। क्यों ऐसा? क्योंकि एज यू कैन सी कि अगर पोयम आती भी है, दिस पोयम जनरली इज नॉट वेरी प्लेजेंट। फिर राइमिंग वाली हमारी प्यारी पोयम नहीं होती जो हमें 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में हुआ करती थी स्कूल में। ठीक है, ये पोएट्री इन प्रोज होता है बहुत से बार। इट्स लाइक किसी को एक पैराग्राफ लिखना था, उसने जबरदस्ती एंटर मार्क दबाते गया ताकि लाइन चेंज होती जाए और एक पैराग्राफ को पोएम का लुक दिखने लगता है। तो दैट इज अ बिट सरप्राइजिंग, बट एनीवे इट्स नॉट गिविंग यू अ लॉट। सिर्फ 2 क्वेश्चंस आते हैं, सो वेदर यू लाइक द पोएम और वेदर यू वांट टू अटेम्प्ट इट और ड्रॉप इट, एनी वे यू हैव ओनली 2 क्वेश्चंस। सो इफ यू आर वरीड यार मुझे तो समझ ही नहीं आता, मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, पोएट्री इन प्रोज कौन पढ़ेगा, एलर्जी है, so am I going to lose a lot, is it a cause for worry? Frankly speaking I don't think so। ठीक है, ये bottom 3 पे there is a reason that I've stacked the questions in a descending order of importance। ये जो आखिरी का bottom 3 वाला stack है ना, this is going to make a lot of noise, but I think you would be better if you ended up even ignoring it। ठीक है, करेंगे इसके ऊपर हम डिस्कस थोड़े से टाइम में। फिलहाल के लिए मैं आपको एक बार एक्वेंट करा देता हूँ कि क्वेश्चन कैटेगरीज क्या क्या आती है, फिर इसमें से किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, विल डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। पैराजम्बल्स, यू गाइस माइट बी वेरी फेमिलियर विद इट। प्रैक्टिकली एवरीबडी हु गिव्स द ज़ैट एग्जाम, आपने कैट दे चुके हो, यू नो व्हाट दिस क्वेश्चन कैटेगरी इज ऑल अबाउट। तो ओनली डिफरेंस इज कैट एग्जाम में ये थीटा क्वेश्चन के फॉर्मेट में आता था, बट इन ज़ैट एग्जाम एटलीस्ट टिल 2023 कोई भी थीटा क्वेश्चन आज तक आया नहीं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं, एंड यस वन रिमार्केबल थिंग, दैट एग्जाम हैज 5 ऑप्शंस टू ईच क्वेश्चन। ठीक है, you don't have just ABCD, there is also another option E there, which of course changes the structure of the negative marking also। अभी अब हम क्लीशे एक बात कर ही लेते हैं, the marking scheme in that exam is +1 if you get it right, ठीक है, -0.25 if you get it wrong, and 8 क्वेश्चन से ज्यादा अगर आपने लीव किया है तो उसके ऊपर जो जो क्वेश्चन आप छोड़ते जाओगे दैट विल कैरी अ पेनल्टी ऑफ -0.1। ठीक है, तो इफेक्टिवली मतलब अगर आप 10 क्वेश्चन छोड़ते हो तो सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम इट, दैट लीव्स 2 क्वेश्चंस, तो 2 into 0.1 मतलब आप 0.2 मार्क्स निगेटिव मार्किंग में नुकसान खाओगे, ऐसा है। ठीक है, बट विल कम बैक टू इट लेटर ऑन, वो करते हैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस हाउ सीरियसली टू टेक ऑल दिस थिंग्स। पैराजम्बल्स, यू विल हैव ऑप्शंस, 5 सेंटेंस पैराजम्बल डालते हैं ये लोग जनरली। ठीक है, इन कैट एग्जाम वी आर नाउ यूज्ड टू प्रैक्टिकली ग्रांटेड, अब आप ले सकते हो कि भाई 4 सेंटेंस के पैराजम्बल्स आएंगे, थीटा फॉर्मेट ऑफ कोर्स, तो 24 पॉसिबिलिटीज आर देयर एंड ऑल, बट हियर यू हैव 5 सेंटेंस पैराजम्बल बट आल्सो यू आर गिवन 5 ऑप्शंस। तो आइडियली स्पीकिंग अगर आप देखो 5 सेंटेंस पैराजम्बल्स कैन बी अ मैसिव पेन इन द एस बिकॉज देयर आर 120 unique possible combinations out of which only one is correct, but given that you have 5 options given here before you, so you need not worry whether that quantum is 120 or 720 whatever, just forget all that। जो given 5 ऑप्शन है आपके सामने उसको आप एक बार देखो एंड मे बी ट्रायल एरर या फिर जो भी तरीके से आप पैराजम्बल क्रैक करने की कोशिश करते हो, आंसर आपके ऑप्शन सामने रहेंगे, उनमें से ही कोई एक आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक यू विल बी वेविंग योर हैंड्स इन द डार्क। And then lastly coming to para completion, now this is not something like CAT, ये थोड़ा सा different है। I'll show you what kind of question category ये होती है। 2 क्वेश्चन इसको अब ये पूछने लगे हैं, at least for the past couple of years this has been the trend। ठीक है, तो I hope that you have understood, और एक brief glimpse आपको आ चुका है कि कितने different question categories है, humongous variety in my opinion, 6। ठीक है, अभी इफ यू आर समबडी हु गोज इनटू निटपिकिंग द डिटेल्स एंड ऑल, तो आप बोलोगे यार ये क्या है, ये पोएम वाला इसमें एसिमुलेट कर लो, ये कोई आरसी जैसा ही तो है। तो ठीक है, इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन, प्रैक्टिकली इट इज जस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही एक प्रकार का, दैट यू रीड सम टेक्स्ट दैट इज गिवन टू यू फॉलोड बाय क्वेश्चंस। बस मैंने थोड़ा सा हाईलाइट डिफरेंट किया है क्योंकि आरसी में टिपिकल यू हैव ये पैसेजेस जो हमें कैट एग्जाम और दूसरी कुछ एग्जाम्स में आते हैं, वैसे द लेंथ माइट वैरी। ओके,
length of the RCs which comes in that exam, either one of the RCs might be same as CAT exam 500 words, other RCs might be shorter than that. There is absolutely no way to predict कितना आएगा क्या आएगा. अगर हम XAT 2023 की बात करें तो पैसेज का लेंथ, पैसेज के क्वेश्चन बहुत डुएबल थे. तो ऑल इन ऑल बिकॉज ऑफ दैट द एंटायर सेक्शन फेल इन द इजी टू मॉडरेट वाला जोन. बट उसके कुछ साल पहले अगर आप जाओ, इफ यू गो इन द जोन ऑफ XAT 2020 या फिर XAT इवन 2017 एंड ऑल, तो डिफिकल्ट होती थी तब का. वर्बल सेक्शन वाज जेन्युइनली चैलेंजिंग. बट एनीवे दैट्स अ डिस्कशन फॉर अ सेपरेट डे, फॉर अ सेपरेट वीडियो. फिलहाल के लिए यू कैन टेक आरसी पैसेज. टिपिकल एक पैसेज आएगा फॉलोड बाय क्वेश्चन, तो यू हैव 4 सच एंड 3 क्वेश्चंस टू ईच. पोएम के यार ये लोग 2 ही देने लगे एंड एज यू कैन सी एटलीस्ट फॉर द पास्ट 3 years द ट्रेंड इज कंसिस्टेंट. ठीक है, तो maybe if you are a fan of it, go ahead, but the reward is pretty infinitesimal तो नहीं बोलूंगा, बट बहुत बहुत भारी प्रॉफिट भी नहीं है. ठीक है, एंड बट नेचुरल एनीबडी कैन डू दिस समेशन. इन ऑल यू हैव 26 क्वेश्चंस कमिंग इन. ठीक है, तो दिस रैप्स अप द डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट क्वेश्चन कैटेगरीज, क्वांटम, वॉल्यूम टू गिवन टू ईच कैटेगरी. अब आते हैं, एक बार झलक देख लेते हैं ईच क्वेश्चन कैटेगरी का क्वेश्चन कैसा दिखेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरसी जो है ये तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है. एनीबडी वाचिंग दिस वीडियो मस्ट हैव गिवन कैट एग्जाम, या फिर अगर दी नहीं है तो आप एटलीस्ट कैट की पढ़ाई करके भी इंट्रोड्यूस तो हो चुके हो कि आरसी पैसेज कैसा होता है. सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम देयर. लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट क्रिटिकल रीजनिंग, ग्रामर एंड पैरा कंप्लीशन क्वेश्चंस लुक लाइक. पैराजम्बल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 सेंटेंस, वंस अगेन कैट के थ्रू आपको जानते हो. पोएम का आप समझ के चल लो, एक पैसेज की जगह बस एक पोएम है, नथिंग न्यू देयर. तो लेट्स सी व्हाट क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस लुक लाइक. सो दे लुक समथिंग लाइक दिस. क्या होता है, आपके सामने एक पैराग्राफ दिया रहेगा. दिस इज बाय द वे एन एक्चुअल XAT क्वेश्चन, XAT 23 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वन पैराग्राफ, वेरी रीजनेबल लेंथ, बहुत बहुत मैसिव नहीं है कुछ भी, and followed by a question like this over here. So as you can see, this is a typical strengthen weaken question. पूछा गया यहाँ पे कि ऑथर के पॉइंट को आपको वीकन करना है, फॉलोड बाय 5 ऑप्शंस नेचुरली. ठीक है, ज्यादातर स्ट्रेंथन वीकन क्वेश्चन ये लोग कम पूछते हैं. एज फार एज आई हैव ऑब्जर्व, ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी इन लोगों में है इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन का, wherein they give you a paragraph, but the question that follows is not strengthen weaken, but something like which of the following can be most reasonably concluded from the passage, या फिर which of the following can most reasonably be inferred from the passage. ठीक है, so inference based question, but anyway strengthen weaken हो, conclusion हो, inference हो, all of them broadly fall in the category of critical reasoning as I've underlined over here. ठीक है, so this takes care of it. There are 5 questions dedicated to it. बहुत doable, बहुत अच्छा. अगर आपके सीआर क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर अच्छा ग्रिप है तो आई थिंक दिस इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट दैट यू शुड नॉट लेट गो ऑफ. ठीक है, और अगर नहीं भी बहुत अच्छा है तो यू स्टिल हैव टाइम. द डे आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो देयर स्टिल मोर देन 20 days टू गो फॉर द एग्जाम. मोर देन इनफ टाइम टू कैच अप विद क्रिटिकल रीजनिंग. अगर आपका कैट प्रेप में ठीक से नहीं हुआ है तो यू कैन रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू आउट विद क्रिटिकल रीजनिंग. बट डेफिनेटली ये 5 क्वेश्चन सच में आपने करना चाहिए. ठीक है, more on this later. Let's move on and see what the other 2 question categories are about. Grammar questions, ideally speaking मुझे grammar नहीं पसंद when it comes to so serious exams like MBA entrance. That is one of the reasons why I'm not a huge fan of SNAP exam or even Maharashtra MBA CET. ये typical 5वीं 6वीं क्लास का ग्रामर पूछते हैं यार. मतलब one of the SNAP exam slots which went by अभी 10 दिसंबर 2023 का, वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज कि सेंटेंस में कुछ तो वर्ड था अबव, और क्वेश्चन ये था कि भाई प्रीपोजिशन बताओ इस सेंटेंस में का, एंड ऑफ कोर्स द प्रीपोजिशन यूज्ड इज अबव. लाइक सीरियसली, दिस इज एन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम एंड यू आर आस्किंग स्टफ लाइक प्रीपोजिशन बताओ और एडजेक्टिव बताओ. तो ठीक है, एनीवे, नॉट टू बिच अबाउट एनीबडी एल्स. ग्रामर क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू XAT एग्जाम बहुत रीजनेबल, वेरी लवली. So even somebody like me who detests grammar के questions in MBA entrance exam, I could not help but feel good. क्यों? क्योंकि एक क्या करते हैं, आपको 5 या 6 sentences देते हैं. You can see here only 5 are given. Sometimes they give you 6 and the job is very straightforward. कि एक तो incorrect sentences बता दो उस 5-6 के ग्रुप से, या फिर correct sentence बताओ. Very very straightforward, nothing much. And as you can see here, couple of sentences in each option. 6 sentences अगर आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं तो देयर माइट बी वन मोर सेंटेंस एडेड ओवर हियर. जनरली ऐसा कॉम्बिनेशन दिखता है. ठीक है, बट द जॉब इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू आर नॉट टू पिन पॉइंट स्पेसिफिकली कहाँ गलत हुआ बताओ, नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है वो. सिर्फ आपको ये काम डिटरमाइन करना है, सही है या गलत, बस ये तुम डिसाइड कर लो, काम खत्म.
तो व्हाई डू आई लाइक दिस इज कि पकड़ के चलो यहाँ पर एक सेंटेंस उठाते हैं, ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस पकड़ते हैं। फॉर सम रीजन इफ यू लेट अस से यार ये ना द पियानो क्या हो यार, अ पियानो रहना चाहिए, है ना, ये गलत बात है, एंड यू डिसाइड एंड अप डिसाइडिंग कि नहीं ये फिफ्थ सेंटेंस गलत है, एंड यू मार्क एन ऑप्शन विच सेज फिफ्थ सेंटेंस। ओके, तो टेक्निकली स्पीकिंग आप सही हो, मतलब सही इन द सेंस कि सेंटेंस गलत है, बट किस रीजन की वजह से आपने गलत पकड़ा है ना, वो ठीक नहीं है। द पियानो इज ऑल राइट, द एक्चुअल एरर इन दिस सेंटेंस इज ही इज गुड एट प्लेइंग द पियानो, ठीक है। तो इवन दो आप कंसेप्चुअली ठीक नहीं जा रहे हो, बट समहाउ यू अराइव्ड एट द राइट आंसर, एंड दैट टेक्स केयर ऑफ योर स्कोर आल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ग्रामर वाले क्वेश्चंस इन लोगों ने जो अभी तक फ्रेम करना स्टार्ट किया है, गिवन अ क्लस्टर ऑफ 5-6 sentences and you have to determine which ones are correct, which ones are wrong, तो कहीं ना कहीं helps even a very so type of aspirant also, क्योंकि nobody has to dive into the nitty gritties of grammar and all. I'll comment a little bit more on this later on, but फिलहाल के लिए 5-6 सेंटेंस का क्लस्टर, एंड यू हैव टू ओनली डिटरमाइन कौन से सही और कौन से गलत, बात खत्म। पिन पॉइंट नहीं करना है एरर, यू डोंट इवन हैव टू रेक्टिफाई द सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र एमबीए सीईटी या फिर इन बैंकिंग एग्जाम्स ऑल्सो, क्या होता है, यू आर गिवन अ सेंटेंस और सेंटेंस करेक्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं कि एक तो ढूंढो एरर कहाँ पे, और जहाँ पे है उसको ठीक करने वाला ऑप्शन कौन सा है वो भी पिन पॉइंट करो कि अच्छा ठीक है, दिस पार्ट हैज टू बी रिप्लेस्ड विद समथिंग एल्स व्हिच विल एंश्योर द सेंटेंस इज नाउ करेक्ट। तो आपको करेक्शन भी नहीं करना है, आपको सिंपली ये पॉइंट आउट करना है सही या गलत, केस क्लोज, ठीक है। चलो लेट्स गो टेक अ लुक एट फाइनल क्वेश्चन कैटेगरी पैरा। इसमें दो वेराइटी आती है। एक वेराइटी जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हो, यू आर गिवन वन पैराग्राफ विद मल्टीपल ब्लैंक्स इन देयर, एंड ईच ब्लैंक ऑफ कोर्स विल कमांड सेपरेट डेडिकेटेड वर्ड टू इट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द ग्रामर, एवरीथिंग। तो इन माय ओपिनियन दिस इज चैलेंज। ओके, दो क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर में। जैट 2023 में क्या किया उन्होंने, एक क्वेश्चन इस टाइप का दिया, एंड द सेकंड क्वेश्चन दिस टाइप वाज अ बिट डिफरेंट। दे गेव यू वन कंप्लीट पैराग्राफ और उसका आखिरी सेंटेंस मिसिंग था। तो इट वाज आल्सो इफेक्टिवली पैरा कंप्लीशन ही, बट वहां पे आपको लास्ट सेंटेंस ढूंढना है। इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ओवर हियर, यहाँ पे भी पैरा कंप्लीट ही कर रहे हैं, बट इट्स लाइक यू आर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ओके, so coming back to the discussion, as you can see ये क्वेश्चन का आप लेवल देख सकते हो, फेयरली चैलेंज, एंड जहां तक मेरा हंच है, these guys are going to rely a little bit of vocab का knowledge to ensure ये क्रैक किया जा सके या ना किया जा सके, ठीक है। So although the question that you can see on the screen right now, the options that you can see, fairly reasonable words, hardly कुछ ऐसा rare word यहाँ पे आपको दिख रहा है, but if you take into account the context of the question, इतना इजी नहीं है सही आंसर पे अराइव करना, ठीक है। तो अगर अगर ये क्वेश्चन कैटेगरी इज अ बिट बॉदरसम टू यू, लाइक इट वाज टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम खो कर भी कितने मार्क्स हो रहे हैं, एक और एक दो, ठीक है। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द डिस्कशन की दिस टाइप ऑफ पैरा कंप्लीशन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट at least a couple of them maybe in the exam also this year ZAT 24। देखते हैं कैसे लेवल का आता है, क्या आता है। ZAT 23 में चैलेंजिंग था। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन डिस्कशन एट हैंड। अब आप बोलोगे भाई इतने सारे क्वेश्चन कैटेगरी आते तो है, अब करे तो क्या करे, जाए तो जाए किधर, बोले तो बोले क्या, ठीक है। I messed up the popular saying. Okay, pardon. Anyway, coming back. तो भाई देखो, मेरा काम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई डू नॉट जनरली मिन्स माई वर्ड्स। तो माई एटीट्यूड टू दिस क्वेश्चन कैटेगराइजेशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, like this. I am going to, pay my respects. I am going to align myself with this gang. जिधर दम उधर हम। दम दिख रहा है आपको इन पंटर में ही है। टोटल 26 क्वेश्चन में से कितनी कॉर्नरिंग हुई है ये टॉप 3 कैटेगरीज में, आरसी, क्रिटिकल रीजनिंग और ग्रामर मिलकर करीब करीब पूरा सेक्शन खा जा रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाउ मच इज इट, 20 क्वेश्चंस, ठीक है। आरसी में चलो ठीक है, इफ यू वांट अ फाइनल डिटेलिंग, तो आउट ऑफ 4 आरसीज एक चैलेंजिंग था व्हेन इट केम टू ZAT 23। इट वाज अ लिटिल बिट एब्स्ट्रैक्ट, इट वाज अबाउट इंटरप्रिटेशन समथिंग। बट जो 3 आरसीज थे ना, बहुत डुएबल थे, रियली वेरी डुएबल। I'll try to make videos on those, I'll post them also।
आप उसमें से सॉल्व कर सकते हो, या फिर यू कैन गो अहेड ऑन योर ओन एंड ऑल्सो सी व्हाट दोज आर लाइक. Strongly recommend that you do that actually, not rely on me or anybody else to make videos on it. But जाकर honestly check कीजिए, you will yourself realize कि भाई नहीं, है तो बहुत doable था. जैट का फुकट में बवाल है इतना. ठीक है, तो 3 RCs वेरी डुएबल. तो दैट शुड टेक केयर ऑफ व्हाट 9 क्वेश्चंस. ठीक है जी. क्रिटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन वेरी 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 डुएबल. नो किडिंग. अगर आपका क्रिटिकल रीजनिंग नहीं हुआ है ना ठीक से, जस्ट ड्रॉप मी अ मेल, आई विल हेल्प यू आउट इन सम वे और दी. ठीक है. और ग्रामर एज आई मेंशन, वेरी डुएबल, वेरी डुएबल. यू नीड नॉट डीप डाइव इनटू एकदम हॉरिबल डिटेल्स, हॉरिबल वाले रूल्स रिगार्डिंग ग्रामर. बहुत अच्छे से, और तो ऑप्शन भी दिया आपके सामने, और कहीं ना कहीं ऑप्शन एलिमिनेशन आप अप्लाई करके यू कैन अराइव एट द राइट आंसर. नॉट समथिंग दैट विल ब्रेक योर हेड. सो द ऑड्स ऑफ यू अराइविंग एट द राइट आंसर गो अप ड्रामेटिकली. तो ये भी तीनों क्वेश्चंस एकदम अच्छे से आप कर सकते हो. तो दैट टेक्स केयर ऑफ योर एंटायर वीआरसी सेक्शन एकदम अच्छे से यार. एंड यू नो व्हाट द गुड न्यूज हियर इज विद रिस्पेक्ट टू दैट, यू डोंट हैव दैट 40 मिनट का टाइमर वाला टॉर्चर जो कैट एग्जाम में होता है. यू नो वेदर समटाइम्स यू नो यार ये सेक्शन मुझसे हो जाएगा, मुझे थोड़ा टाइम दो यार, 10 मिनट दो, 15 मिनट ज्यादा दो. तो इन दैट एग्जाम यू डोंट हैव यू नो अ टाइमर बाइंडिंग यू टू वन सेक्शन लाइक इट इज इन द कैट एग्जाम. तो आपके पास में थोड़ा सा फ्रीडम है. अगर समझ लो डिफिकल्ट आ जाता है वर्बल का सेक्शन, बट यू थिंक कि नहीं, थोड़ा 10 मिनट ज्यादा देकर आई कैन डू अ गुड वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस देयर, तो डेफिनेटली आपने वो करना चाहिए, कर भी सकते हो. और अगर इजी है तो बट नेचुरली यू कैन कंपेंसेट, जल्दी जल्दी निपटा के देन यू गो एंड डू जस्टिस टू द अदर 2 सेक्शंस. एनीवे, completely your call. So that is the benefit which comes with that कि जो 175 मिनट से आपको देते हैं तीनों सेक्शन का मिलाकर, क्वांट, डीएम एंड वीआरसी. तो यू कैन यूज इट जुडिशियसली एज पर योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ठीक है. रही बात अब ये आखिरी 3 की, आप बोलोगे अब क्या करें, इसको छोड़ दे. तो देखो यार, मैं ऐसी एडवाइस तो नहीं दे रहा हूँ वन साइज फिट्स ऑल टाइप वाली कि छोड़ दो. बट इन माई ओपिनियन, इन माई टेक ऑन इट, कि अगर आपको ये जमता भी है तो भी बहुत, देर आर यू नो देर आर नॉट अ लॉट ऑफ प्रेशियस एडवांटेज, बहुत अच्छा हेड स्टार्ट वगैरह टाइप नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल पैराजिम 5 सेंटेंस वाला है. इफ यू गेट इन टू द लूप ना कि नहीं सही मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, अरे 3 से तो ऑप्शन ही नहीं है. तो कहीं ना कहीं पैराजम्बल्स हैव दैट नोटोरियस क्वालिटी ऑफ ट्रैपिंग एन एस्पायरेंट इनटू एक ईगो वाला लूप. तो प्लीज ब्रेक आउट ऑफ दैट. देयर इज लिटरली नो हीरोगिरी, हीरोपंती वाले पॉइंट्स टू बी ऑप्टेंड. Poem, if it scares you, poetry in prose is something which I am allergic to, frankly speaking. So I wouldn't give this a lot of half in the sense, not a lot of weightage. Okay. रही बात इन क्वेश्चंस को टारगेट करने की, तो आप देख सकते हो 20 में से 15-17 क्वेश्चंस तो ऑनेस्टली वेरी डुएबल. मे बी इफ आई एम इन द मूड आई विल गो एंड टेक अ लुक एट दिस एंड सॉल्व इट. वर्स्ट केस सिनेरियो, यू आर फोर्स टू ड्रॉप इट, तो भी कितना ही हुआ यार, 6 ही तो क्वेश्चन छूट रहे हैं. ओके. अब आप बोलोगे यार ऐसे कैसे बोल दिया. अब आते हैं काम की बात. ठीक है. आई नो दैट जैट हैज दिस फीचर कि अगर आपने 8 क्वेश्चन से ज्यादा छोड़े तो फिर वो -0.1 वाला जो निगेटिव पेनल्टी है कि आपने एक्सेसिव अटेम्प्ट ड्रॉप किए है, वो आपको काटेगा. तो फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम रिमाइंडेड ऑफ वो सूट्स का डायलॉग है पे. आई डोंट नो वेदर यू हैव वॉच्ड द सीरीज और नॉट, बट एक बहुत अच्छा डायलॉग है उसके अंदर. क्या है कि इफ समबडी थ्रेटन्स यू विद अ गन, व्हाट डू यू डू एज दे से नो. उन्होंने तुम्हें धमकी दी है तो यू डोंट बाउ डाउन बिफोर देम. व्हाट यू डू इज यू पुल आउट अ बिगर गन, और यू पुल आउट यू नो, और यू कॉल द सामने वाले का ब्लफ कि तुम फुकट में मुझे डरा रहे हो. या फिर यू थ्रो दैट गन अवे, यू टेक दैट गन, और यू डू 146 अदर थिंग्स. तो समथिंग लाइक दैट, ये वही गन है जो हमें डराने की कोशिश कर रही है कि देख तुमने 8 क्वेश्चन ज्यादा छोड़े ना, मैं तुम्हें मार्क्स की पेनल्टी चढ़ाना चालू करूंगा. चढ़ाने दो. क्यों. लेट अस से हाइपोथेटिकली पूरे तीनों सेक्शन में मिला के आपने 20 क्वेश्चंस भी छोड़ दिए, विच इज अ मैसिव नंबर. ओके. आई एम नॉट एंडोर्सिंग कि इतने छोड़ना है, बट वर्स्ट के सिनारियो पकड़ो. ठीक है. कि आपने 20 क्वेश्चंस भी अगर अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, तो सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम इट. हाउ मच आर यू लेफ्ट विथ 12. 12 मल्टीप्लाइड बाय -0.1, दैट मीन्स यू विल बी पेनलाइज्ड जस्ट -1.2 मार्क्स. दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट. तो आप बोलोगे ये क्या मजाक की बात है क्या, एक एक मार्क्स से जाट में कट ऑफ आगे पीछे हो जाता है, परसेंटाइल कहीं 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 जाता है. ठीक है. लुक एट दी अदर साइड ऑफ इट. आई एक्सेप्ट दैट 1.2 इज नॉट अ स्मॉल नंबर व्हेन इट कम्स टू दैट एग्जाम. बट व्हाट इज द फ्लिप साइड ऑफ इट. जबरदस्ती करके खुद को ये 8 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन वाले बेंचमार्क से डर के 5-6 क्वेश्चन जबरदस्ती, 10 क्वेश्चन जबरदस्ती अटेम्प्ट करोगे. करने जाओ, नेगेटिव मार्किंग बैठा है वहां पे.
-0.25 का गिफ्ट लेकर। ओके, और आप लोगों का तो अभी कैट एग्जाम हो ही गया होगा, कई सारे लोगों ने नेगेटिव मार्किंग की ताकत भी फर्स्ट हैंड देख ली होगी। तो यू टेल मी वेदर -0.25 इज डिजायरेबल और -0. ठीक है, खास करके व्हेन इट कम्स टू फोर्स्ड अटेम्प्ट्स वेयर यू आर नॉट वेरी श्योर व्हाट इज हैपनिंग। सो फिर भी अगर आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो इट्स लाइक आप -0.1 से डर रहे हो बट -0.25 से नहीं डरते। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? ठीक है, दैट इज वाई in spite of this feature in XAT exam, where if you leave more than 8 questions, you will be penalized with this quantum per question. Don't worry about it. हर साल कोई कोई एस्पायरेंट, कुछ एस्पायरेंट्स इस चीज का थोड़ा सा बवाल मचाते हैं कि अरे नहीं ना सर, इतने कैसे छोड़े, डर लग रहा था इसलिए अटेम्प्ट कर दिए इतने हाई नंबर। मत करो। अप्रोच का जो वॉल्यूम है, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वगैरह वगैरह, जो माइंडसेट है, कहीं ना कहीं कैट टाइप का ही आपको रखना है। ठीक है, कि रीजनेबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यू आर प्रोसीडिंग काफी कॉन्फिडेंस के साथ में। ठीक है, आप थोड़े से और एक्स्ट्रा बोल्ड हो सकते हो बिकॉज द क्वांटम ऑफ negative marking that is coming in here, that is in the ratio of 1:4. In CAT, it is very scary. It is with respect to 1:3. You know, you get it right, it's correct 3, but if you get it wrong, it's -1, which is very scary. But in that exam, थोड़ा सा relaxation है उस end पे because there are 5 options. So अगर आप सही होते हो तो 1+1, but going wrong तो -0.25, which brings the ratio to like what 1:4, which is anyway any day much more desirable. But फिर भी don't fall prey to that. Don't fall in this zone जबरदस्ती का। if you even if you go in this zone 20 questions unattempted, फिर भी बहुत ज्यादा डर की बात नहीं। ठीक है, you will still be pretty much on the safer side instead of blitzkrieg attempt, और भाई नहीं 20 unattempted नहीं छोड़ूंगा, 10 20 10 12 तो कर लेता हूँ, कुछ तो कर लेता हूँ। प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, कमिंग बैक टू द वर्बल वाला पैटर्न, माई bias, my inclination is clear cut, stacked in favor of these, and a little bit ignorant, a little bit partial against this three categories. पैराजम्बल से तो मेरी पुरानी दुश्मनी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्वेश्चन कैटेगरी ज्यादा। एनीवे, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, यहाँ पर कैसे हैंडल करना है, क्या करना। तो ऑफ कोर्स देखो, एक बात ध्यान में रखो कि स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं हमने अभी जो भी डिस्कशन किया, इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ स्पेक्यूलेशन। For all we know, XAT paper setters might decide to pull something like CAT 23, surprise the hell out of aspirants, and give a notoriously crazy paper pattern. And they do have the full rights to it. ठीक है, तो अगर वैसा हो गया तो of course it's going to become a test of how quick you are on your feet, how well you are able to decide, how quickly you are able to take judgment calls. But that is like 50% chance, 50% chance है कि जो ये pattern set हो चुका है वो retained है। तो यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट 50% इवेंचुअलिटी, जहाँ पे द सेट किया हुआ ट्रेंड, सेट किया हुआ पैटर्न इज मेंटेन। तो तब आपको क्या करना है, तो पहले से थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर लो स्ट्रेटेजी। सो व्हाट समवन लाइक मी वुड डू इज, जैसे ही सेक्शन स्टार्ट होगा, आई विल गो फर्स्ट ऑफ ऑल इन हंट ऑफ दिस पोएम वाला कैटेगरी, कि इज इट, हैज इट कम एज एन इनबिल्ट पार्ट ऑफ आरसीज, जहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे, या फिर उसको लोअर प्रायोरिटी पे रखा है 2 क्वेश्चन। इफ इट टर्न्स आउट कि नहीं यार, पोयम पोएट्री इन प्रोज दिख रहा है, कुछ तो भी 2 ही क्वेश्चन है, मेंटली आई विल डिलीट दैट क्वेश्चन फ्रॉम माय माइंड। नहीं, इसको देखना ही नहीं है, इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना। देन आई विल गो चेक कि भाई ग्रामर और सीआर के कितने क्वेश्चन है, बिकॉज द टाइम टेकन टू क्रैक दिस क्वेश्चन इज बहुत कम कंपेयर्ड टू आरसी। ठीक है, यू विल रिक्वायर फार लेस टाइम टू क्रैक दिस प्रॉपरली कंपेयर्ड टू आरसी सेक्शन। तो दैट इज वाई इनको जल्दी से आपने हिट करने का टारगेट रखना चाहिए। दैट एज सुन एज द सेक्शन स्टार्ट, आपके हिट लिस्ट के ऊपर में सीआर और ग्रामर के क्वेश्चंस रहे, विच विल गिव यू अ वेरी गुड मोमेंटम, एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा टाइम भी आपका कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, जब एग्जाम शुरू होती है, अ लॉट ऑफ टाइम्स आई स्ट्रांगली एडवाइस, पैराजम्बल्स को मत करो टच। ईगो लूप में अगर आप चले गए तो टाइमर कहाँ आगे चले जाएगा और आप घूमते रह जाओगे ऑप्शन में, आपको भी पता ना चले। ओके, एंड ऑफ कोर्स ऑप्शंस, with great power comes great responsibility, so with options comes the threat of negative marking। ठीक है, तो कैट वाली मेंटालिटी में मत रहना कि अरे कर देते हैं पैराजम्बल, नुकसान क्या है, होना है यहाँ पे तो भैया जी बहुत अच्छा नुकसान बैठा है -0.25। ठीक है, so focus your attempts in my opinion on these question categories, the top 3, if the paper pattern stays the same this year 2024 also, the same as 22 and 20। ठीक है, बट नहीं भी हो सकता है, एनीबडी, एनीथिंग कैन हैपन। तो आई एम स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट 50% इवेंचुअलिटी, सेकंड 50% वाला पार्ट कुछ भी हो सकता है, तो वो तो यार देखो सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, चलो दैट्स इट फ्रॉम माय पार्ट।
I'll try to post videos covering critical reasoning के questions and grammar questions of previous year XAT papers so that you can find them all in one place and solve एक stroke में. Other than that, you might not even wait for the videos. Strongly recommend that अब DM का section और verbal का section खुद से करना start करो. XAT is a wonderful exam in the sense that उसका official paper उनके खुद के website पे available है, like CAT exam a lot of times. So you will be able to handle it properly. Unlike other ecosystems like NMAT या फिर SNAP जहाँ पे official papers are not available, so that creates a lot of hue and cry, a lot of confusion among aspirants. तो वो गुंजाइश बहुत कम हो जाती है when it comes to XAT and CAT. So try to do justice to it. These are very mature exams. The colleges that you can get through this XAT exam are of really good quality. XLRI Jamshedpur, of course, it is the crown in the ecosystem. But other exams, other colleges, very reputed, very respectable colleges like XAT and all. So seriousness se rakho. Another topic that I want to discuss slightly right now is, you know, CAT के बाद में there is a slump which a lot of aspirants feel in their enthusiasm, in their capacity to study and all. I have personally gone through it also, so बहुत relatable है वो चीज. But somehow through your own individual process, you will have to get out of that rut and try to do justice to this exam and इसकी पढ़ाई को. ठीक है? So get the wheels moving. I think many of you must have anyway come out of it क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो स्नैप एग्जाम भी दे चुके हो. थैंकफुली स्नैप के थ्रू आपका काफी कुछ ग्रामर भी आई होप हो चुका होगा. So this should take care of these 3 questions in the main exam also. ठीक है? So keep the momentum going. Don't create a break anywhere in your studies. Before you know it, 7th January will be done, and finally with it, I mean, hopefully आपका सारा वो जो एग्जाम का बहुत बड़ा सर्कस है वो खत्म हो जाएगा. And after that, GDPI का प्रेप होता है. ठीक है? तो चलो. With that, thanks a lot for watching. If you like the content, please like, share, and subscribe. Please share it with your other fellows and your friends. And I'll see you in the next video. Tata, bye bye, and take care.